السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 29۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہونے والے راجپوتوں کو جب خبر ہوئی کہ غزنی سے شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ بڑی رفتاری سے ان کا رخ کر رہا ہے، جبکہ قطب الدین ایبک اور ایبا نہر والا کے نواح میں بھیمدیو کو شکست دینے کے بعد وہاں سے واپسی اختیار کر گئے ہیں، تب راجپوتوں اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تنہر شہر کے نواح میں جمع ہوئی۔ یہ تنہر نام کا شہر وہی ہے جسے آج کل بیانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مسلمان مخبر سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک کے درمیان بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ پیغام رسانی کا کام انجام دے رہے تھے۔ جہاں سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ براہ راست تنہر یعنی بیانہ کا رخ کیا تھا، وہاں قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی کا رخ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ بیانہ سے کافی دور قطب الدین ایبک اور ایبا سلطان شہاب الدین سے آ ملے۔ سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ بیانہ کی طرف بڑھا اور جہاں راجپوتوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کیا تھا، بالکل ان کے سامنے جا کر سلطان نے لشکر کا پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ راجپوتوں کے لشکر کی ایک خصوصیت تھی کہ اس میں کلیار، اجمیر، الکلنجر اور بدایوں کے ان گنت جنگجو راجپوت شامل تھے۔ اس کے علاوہ کہ راجا بھیمدیو نے بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ راجپوتوں کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح راجپوتوں کو اپنی متحد طاقت پر ایک زعم اور ایک بے بنیاد گمان اور گھمنڈ سا ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین کے بیانہ کے پاس پڑاؤ کرنے کے ساتھ ہی راجپوتوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے لشکر کی وہ صفیں درست کرنے لگے تھے اور اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے لگے تھے۔ لشکر کے وسطی حصے کے علاوہ دائیں بائیں اور پشت کی طرف زور زور سے طبل اور نقارے بج اٹھے تھے۔ لشکری عجیب و غریب آوازوں میں دوسرے کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے نعروں کا سہارا لے رہے تھے۔ دوسری طرف سلطان بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بیانہ کے نواح میں راجپوت سلطان شہاب الدین کے لشکر پر سیاہ کار شب میں تیر کی تیز بارش کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی فوراً راجپوتوں کے اس حملے کے جواب میں اپنی کارروائی اور وہ بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے راجپوتوں پر عذاب کے سلسلے کھڑے کرتے صحرا کی ساوانٹ پاسبانوں بے پناہ وحشتیں برپا کرتی دہشت کی ویرانوں کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کی اس طرح ٹکرانے سے میدان جنگ کے اندر آتش حد تک کی موت وحشتیں رگ رگ میں ابتدا کر چکی تھی۔ بیانہ کے نواح میں راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بدترین شکست دے کر اپنی پچھلی ساری جنگوں کی شکست کا انتقام لے لے، لیکن ان کی بدبختی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر، ان کا کوئی بھی جتن کامیاب نہ ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد راجپوتوں نے خود ہی دیکھ لیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کے سامنے اب ان کے لشکروں کی حالت دہر کے آشوب خانے میں شعور کی فقدان، وسوسوں کے پرتوں اور انحطاط کی بے یقینی جیسی ہونی شروع ہو گئی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان لشکری سرمدی لمحات آتشی دائروں کے بگولوں اور قدرت کے بیکار احتساب کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ان پر حملہ ور ہو رہے تھے اور ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس جنگ میں راجپوتوں کو شکست ہوئی۔ بیانہ کے نواح میں سلطان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد راجپوت بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ نے کلیار کا رخ کیا اور کچھ اجمیر کے گرد نواح کی طرف چلے گئے۔ جنگ کے بعد سلطان نے جہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا، وہیں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ حالات کی ستم ظرفی کے سلطان شہاب الدین ابھی بیانہ کے نواح میں میدان جنگ کے اندر ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ غورستان سے اس کے پاس کچھ قاصد آئے اور انہوں نے سلطان کو دو بری خبریں دی۔ پہلی ہے کہ سلطان کا بڑا بھائی غیاث الدین غورستان میں سخت بیمار تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ دوسری خبر ہے کہ پہلے کی طرح طوس اور سرخس شہر میں پھر سرکشی اور بغاوت کے آثار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ خبریں ملنے کے بعد سلطان شہاب الدین بڑا فکر مند اور پریشان ہوا اور اسی وقت اس نے اپنے سارے سالاروں کو طلب کر لیا۔ جب سب سالار سلطان کے پاس آئے تب سلطان نے سب سے پہلے ان دو خبروں کی تفصیل انہیں بتائی۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، ایبک میرے بیٹے،
इसमें कोई शक नहीं कि बियाना के नवाह में राजपूतों को शिकस्त देकर हमने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन याद रखना अगर इनका ताक़ुब और पीछा करके मुकम्मल तौर पर उनकी ताकत और कुव्वत का खात्मा न किया गया तो किसी भी वक्त वो फिर इस्तिवार होकर हमारे सामने आ सकते हैं। जो दो खबरें मैंने तुम्हें सुनाई है उनके तहत मैं आज ही वापस गोरिस्तान का रुख करूंगा। गोरिस्तान जाते हुए मैं पहले तूस और सरखस शहर का रुख करूंगा और वहां जो हालात खराब हुए हैं उन्हें दुरुस्त करता हुआ गोरिस्तान की तरफ निकल जाऊंगा और अपने भाई की बीमार पुरसी करूंगा। यहाँ तक हमें खबरें मिली है कि उनके मुताबिक यहाँ से भागने वाले राजपूतों में से कुछ ने कुलियार का रुख किया है और कुछ जाकर अजमेर के नवाह में अपने आप को मुसलह करने लगे हैं। कुतुबुद्दीन हज़ब साबिक हुसैन खरमल को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ऐबा तुम्हारे पास रहेगा। इसके अलावा कल्ब लश्कर में अपने साथ काम करने वाले सालार बहाउद्दीन तुगरल को भी तुम दोनों के साथ यही छोड़ रहा हूँ। रवानगी से पहले मैं तुम्हें ये कहूँ कि राजपूतों के खिलाफ फौरन हरकत में आना। सुल्तान रुका फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मैं जानता हूँ तुमने यहाँ क़याम के दौरान अपने लश्कर में मजीद इजाफा कर लिया है, लेकिन जो लश्कर मैं गजनी से लेकर आया था अब उसका एक हिस्सा भी मैं यहाँ छोड़कर जाऊंगा और वो हिस्सा बहाउद्दीन तुगरल की कमांडरी में रहेगा। मेरे बाद तुम एक काम करना कि बहाउद्दीन तुगरल को तो कुलियार की तरफ रवाना करना। कुलियार में जो शिकस्त खुर्दा राजपूत जाकर बैठ गए हैं बहाउद्दीन तुगरल उन पर हमलावर हो और उन्हें शिकस्त देकर कुलियार पर कब्जा कर ले। जबकि तुम्हारे और ऐबा के लिए मैं ये चाहूंगा कि तुम अपने लश्कर को लेकर अजमेर का रुख करना। अजमेर के गिरद नवाह में जो राजपूत फैल गए हैं पूरी ताकत और कुव्वत और सख्ती के साथ उनके खिलाफ हरकत में आओ और उन्हें इस तरह कुचल मसल करके रख दो कि आने वाले दौर में किसी भी मौके पर वो तुम्हारे लिए खतरे का बाइस ना बने। सुल्तान रुका, उसके बाद वो फिर कह रहा था, जैसा कि जंग से पहले हमारे मुखबिरों ने इत्तला दी थी कि राजपूतों का वो लश्कर जो बियाना के नवाह में हमसे टकराया था उसमें नहरवाला के लश्कर का एक हिस्सा भी शामिल था और नहरवाला के राजा भीमदेव ने राजपूतों की मदद के लिए वो लश्कर रवाना किया था। मैं एक तरह से तुम दोनों पर बेहद खुश और मुतमईन हूं कि तुम लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में नहरवाला के राजा भीमदेव को शिकस्त देने के बाद एक तरह से अपनी गुज़िश्ता पसपाई का उससे खूब इंतकाम लिया। यहाँ से रवानगी से कबल मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि कुलियार और अजमेर के नवाह में राजपूतों को अपने सामने जेर और मगलूब करने के बाद बहाउद्दीन तुगरल को तुम अपने पीछे इलाकों की देखभाल के लिए छोड़ जाना, जबकि तुम दोनों लश्कर लेकर नहरवाला को रुख करना, नहरवाला के राजा से टकराना और अगर हो सके तो उसके इलाकों को फतह करके अपनी ममलिकत में शामिल कर लेना, ताकि आने वाले दौर में ये भीमदेव इस काबिल ना रहे कि जगह जगह बगावत खड़ी करने वाले राजपूतों की मदद कर सके। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने सुल्तान की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया, लिहाजा उसी रोज सुल्तान शहाबुद्दीन लश्कर को लेकर वापसी का सफर कर गया था। नए सालार बहाउद्दीन तुगरल को लश्कर देकर कुलियार की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि बाकी लश्कर को लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अजमेर की तरफ चले गए थे। ऐबा के वो लश्कर जिन्हें उसने देवदास और संग्राम को पकड़ने और माहीगीरों की बस्ती से राजकुमारी कुमार देवी को निकाल कर नहरवाला पहुंचाने के लिए मुकर्रर किया था, वो जब दरिया सरस्वती के किनारे आए तो न जाने देवदास और संग्राम को कैसे खबर हो गई कि कुछ मुसलिह जवान कुमार देवी को अगवा करने के सिलसिले में उन दोनों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लिहाजा वो भाग खड़े हुए। इस मौके पर रामदास ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। उसने फौरन बड़ी राजदारी से रात के वक्त ऐबा के उन मुसलिह जवानों से राब्ता किया और उन्हें बता दिया कि देवदास और संग्राम किस सिमत भाग गए हैं, इसलिए कि रामदास की मौजूदगी में ही देवदास और संग्राम फरार हुए थे। देवदास और संग्राम को शायद खबर हो चुकी थी कि ऐबा के मुसलिह जवान दोनों को पकड़ने के अलावा कुमार देवी को तलाश करने आए हैं, लिहाजा वो हांसी की तरफ भागे। उनके साथ उनके काफी मुसलिह जवान भी थे। अब वो अपने घोड़ों को बड़ी तेजी से उस शाहरा पर दौड़ा रहे थे जो हांसी से रेवड़ी और भरतपुर और कुलियार के पास से गुजरती हुई सीधी दरिया जमुना की मुतवाजी कलंजर शहर की तरफ चली गई थी। भगवान दास की बेटी किरण कुमारी और उसकी बीवी राज सुंदरी सुबह का खाना खाने के बाद दरिया की तरफ जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक राजकुमारी कुमार देवी के लिए खौफ और दहशत लेकर आती थी। दस्तक की आवाज सुनती हुई बेचारी किरण कुमारी के पास उठी और भागी तोशा खाने की तरफ जाकर छुप गई। उसके जाने के बाद राज सुंदरी ने अपने शोहर भगवान दास की तरफ देखते हुए किसी कदर तशवीश भरे अंदाज में पूछ लिया, दरवाजे पर इस वक्त दस्तक कौन दे सकता है? सुबह ही सवेरे तकरीबन बस्ती के सारे लोग तो काम पर जा चुके होंगे क्या? भगवान दास ने मुस्कुराते हुए उसकी बात कार देते हुए कहने लगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मेरा दिल कहता है कि कोई राजकुमारी कुमार देवी का पता नहीं करने आया होगा। बहरहाल तुम दोनों माँ बेटी बैठो, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। भगवान दास ने जब आगे बढ़कर दरवाजे की जंजीर हटाकर दरवाजा खोला तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी, इसलिए कि दरवाजे पर रामदास खड़ा था।
भगवान दास एक तरफ हट गया, रामदास अंदर दाखिल हुआ। भगवान दास ने पहले की तरह दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी। दोनों आगे पीछे आगे बढ़े और उस कमरे में जाकर बैठे जहां से भगवान दास उठ कर गया था। इस मौके पर धीमे और प्यार भरे लहजे में रामदास ने कुमार देवी को कहा, कुमार देवी मेरी बेटी आ जाओ, मैं रामदास हूँ, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। इन अल्फाज के जवाब में कुमार देवी भागती हुई तोशक खाने से उस कमरे में आ गई थी। पहले की तरह किरण कुमारी के पास हो बैठी, फिर बड़े शौक और तजस्सुस से रामदास की तरफ देखते हुए कहने लगी, बाबा आपका इस वक्त आना किसी इल्लत के बगैर नहीं लगता, जरूर हालात में कोई तब्दीली आई है। जवाब में रामदास ने लम्हे भर के लिए बड़े गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटा तेरा अंदाजा दुरुस्त है, मैं तेरे लिए दो खबरें लेकर आया हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर यह है कि चंद माह पहले मुसलमानों का एक लश्कर नहरवाला पर हमलावर हुआ। तुम्हारे पिता भीमदेव और भाई रामदेव ने नहरवाला से बाहर निकलकर मुसलमानों के लश्कर का मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त उठाई और शहर के अंदर महसूर हो गए। अगर बियाना की गिल्ड नवाह में राजपूतों ने जमा होकर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने की कोशिश न की होती तो मेरे ख्याल में मुसलमानों का लश्कर अब तक नहरवाला में दाखिल होकर तुम्हारे पिता राजा भीमदेव को अपने सामने बेबस कर चुका होता। ताहम तुम्हारे बाप को शिकस्त देने के बाद मुसलमान का लश्कर वहां से लौट आया है। यह खबर सुनकर कुमार देवी किसी कदर फिक्रमंद हो गई थी। दुख भरे अंदाज में फिर उसने रामदास को मुखातब किया, क्या मुसलमानों के लश्कर की कमांडरी मुसलमानों का सुल्तान कर रहा था? नहीं मेरी बेटी, मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी इस वक्त गजनी शहर में था। रामदास ने जरा सरुक कर कहना शुरू किया, ये आमना सुल्तान की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तान में सुल्तान के वालिद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने किया था और नहरवाला के नवाब में खुले मैदानों में उन दोनों ने तुम्हारे बाप राजा भीमदेव को शिकस्त दी थी। इस इंकिशाफ पर कुमार देवी थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचती रही, फिर तासुब भरे लहजे में कहने लगी, ऐसा होना ही था, मेरे भाई रामदेव के अंदाज से दुरुस्त साबित हुए। वो अक्सर कहा करता था कि मुसलमान अपनी पसपाई का इंतकाम जरूर लेंगे और ऐसा आखिर होकर रहा और मुसलमानों को ऐसा करना भी चाहिए था। वो ऐसा करने का हक रखते थे, इसलिए कि शुरू में नहरवाला के नवाब में हमारे हाथों मुसलमानों को पसपा होना पड़ा था और उस पसपाई का इंतकाम बहरहाल मुसलमानों ने ले लिया है। अब मुसलमानों का लश्कर इस वक्त कहाँ है? रामदास ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई है जिन्हें ऐबा ने देवदास और संग्राम को गिरफ्तार करने के लिए इधर भेजा था। उन्होंने मुझ पर इंकिशाफ किया कि मुसलमानों के हाथों इस तरह नहरवाला के राजा भीमदेव को शिकस्त हुई थी। मुसलमानों का लश्कर इस वक्त कहाँ है ये मैं उनसे नहीं जान सका, वो जल्दी में थे। रामदास के खामोश होने पर अपने आप को संभालते हुए कुमार देवी ने फिर उसे मुखातब किया, बाबा बुरी खबर तो आप कह चुके हैं, अब अच्छी खबर ही सुनाओ। रामदास के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, बेटी अच्छी खबर है कि ऐबा के आदमी देवदास संग्राम के ताक़ुब में लग गए हैं। कुमार देवी चौंकी, जुस्तजू भरे अंदाज में पूछा, उन दोनों के ताक़ुब में लग गए हैं, क्या मतलब है आपका? रामदास फिर मुस्कुराते हुए कह रहा था, बेटी जिस वक्त ऐबा के मुसलिह जवानों ने इन इलाकों का रुख किया था, किसी तरह देवदास और संग्राम को उनके आने की खबर हो गई और उन्हें यह भी पता चल गया था कि राजकुमारी कुमार देवी को अगवा करने की वजह से कुछ लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं और गिरफ्तार करने वाले ऐबा के मुसलिह जवान हैं। इस खबर के मिलते ही वो अपने कुछ मुसलिह जवानों के साथ भाग खड़े हुए। जिस वक्त वो भागे मैं वहां था, मेरे होते हुए यही ऐबा के आदमी वहां पहुंच गए। मेरे इनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई और मैंने उन्हें देवदास और संग्राम के भागने की इत्तला कर दी। वो चूंकि कलंजर की तरफ भागे हैं, लिहाजा वो शाहिरा जो हांसी और रेवड़ी से होती हुई कलंजर की तरफ जाती है, ऐबा के आदमी भी उसी शाहिरा पर उनके ताक़ुब में चले गए हैं। मेरी बेटी ये तेरे लिए अच्छी खबर है कि मुझे उम्मीद है कि ऐबा के आदमी देवदास और संग्राम और उन दोनों के साथ साथ उनके मुसलिह जवानों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद रामदास रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, रामदास संग्राम और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के बाद मेरे ख्याल में ऐबा के मुसलिह जवान सिर्फ देवदास और संग्राम को अपनी गिरफ्त में लेंगे। हाँ, अगर उन दोनों के साथी मुसलिह जवानों ने मुसलमानों से उलझने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में वो ऐबा के लश्करों के हाथों मारे जाएंगे। इसके बाद देवदास और संग्राम दोनों को पकड़कर ऐबा के वो मुसलिह जवान ऐबा के पास लेकर जाएंगे। इसके बाद मेरे ख्याल में मेरी बेटी वही मुसलिह जवान तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आएंगे और तुम्हें लेकर नहरवाला की तरफ रवाना होंगे। साथ ही रास्ते में शायद वो देवदास और संग्राम को भी अपने साथ नहरवाला लेकर जाए, इसलिए कि उनकी सजा बहरहाल तुम्हारे पिता ही को तजवीज़ करनी है। यहाँ तक कहने के बाद रामदास जब खामोश रहा तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, बाबा ये खबर देकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। ये भगवान करे ये देवदास और संग्राम दोनों ऐबा के मुसलिह जवानों के साथ टकराव में मारे ना जाए। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों गिरफ्तार हुआ ऐबा और उनके मुसलिह साथी मुझे और उन दोनों को नहरवाला भिजवाने का एहतमाम करे। अगर ये ऐसा कर दें तो मैं उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सांस और वक्त ने इजाजत दी तो मैं एक बार फिर लौटकर इस बस्ती में जरूर आऊंगी
और यहाँ जो मुझ पर कर्ज और एहसान का बोझ है, किसी न किसी सूरत उसे चुकाने की जरूर कोशिश करूंगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तो उसकी तरफ घूरने के अंदाज में भगवान दास ने देखा और कहने लगा, बेटा किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो? तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ बेटी सी है और बेटियों की बेहतरी के लिए किया जाने वाला काम एहसान नहीं होता, फर्ज में शामिल होता है। जब तक तुम्हारे यहाँ से निकालने जाने का बंदोबस्त नहीं होता, तुम्हारी हिफाजत हम पर लाजिम है। इसके साथ ही भगवान दास अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा मेरा काम का वक्त हो गया है, हम अब जाते हैं, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम करो। भगवान दास के उठते ही किरण कुमारी और राज सुंदरी और रामदास उठ खड़े हुए। चारों बाहर निकले। भगवान दास ने दरवाजे को बाहर से कुफ्र लगा दिया, जबकि कुमार देवी उस कमरे से उठकर साथ वाले कमरे में मुसहरी पर जाकर दराज हो गई थी। देवदास और संग्राम जो अपने साथियों के साथ दरियाई जमुना के मुतवाजी रेवाड़ी और कलंजर की तरफ जाने वाली शाहरा पर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे, वो यही समझ रहे थे कि वो बचकर भाग निकले हैं। उन्हें अभी तक यह खबर नहीं थी कि अहबा के आदमी उनके ताक़ुब में लगे हुए हैं। उनकी बदबख्ती के अहबा के वो लश्करी कोई मुख्तसर सा कावा काटते हुए उनके आगे निकल गए, इसलिए कि अब मुसलमान लश्कर उन इलाकों में सफर करते हुए सारे इलाकों से वाकिफ हो चुके थे। अपने साथियों के साथ देवदास और संग्राम जब मजीद कुछ आगे गए, तब अहबा के मुसले जवान शाहरा पर उनकी राह रोके हुए थे और उनकी हालत ये थी कि उनमें से कुछ के हाथों में बरहना तलवारें और ढालें थी, कुछ के हाथों में कमानें थी जिन पर उन्होंने तीर चढ़ाए रखे थे। उनके करीब जाकर देवदास और संग्राम और उनके साथी अपने घोड़ों की बागें खींचते हुए रुक गए। ये सूरत हाल उनके लिए बिल्कुल नई और परेशान कुन थी। देवदास और संग्राम पहले बड़ी हैरानी और परेशानी में उनकी तरफ देखते रहे। फिर देवदास ने संग्राम की तरफ देखा और तफक्कुर भरे अंदाज में कहने लगा, भाई ये कौन लोग हैं जो हमारी राह रोक के खड़े हुए हैं? क्या ये? देवदास अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि संग्राम बोल उठा, इसकी तरफ गौर से देखो, क्या तुम उनके लिबास से अंदाजा नहीं लगाते कि मुसलमान हैं? मेरा दिल कहता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें हमें गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। हैरत है इस कदर तेजी के साथ कैसे हमारे आगे निकल गए। उन्होंने कोई मुख्तसर सा कावा काट कर हमारे सामने आते हुए हमारी राह रोक ली है। देखिए ये किस किस्म के रद्द अमल का इजहार करते हैं। बहरहाल ये बात यहाँ तक कहते कहते संग्राम को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि अहबा के जिन मुसले जवानों ने उनकी राह रोकी थी, उनका जो सालार था वो कड़कती हुई आवाज में उन्हें मुखातब करके कहने लगा, तुम लोगों में जो देवदास और संग्राम है वो अलहदा होकर दाएं जानिब खड़े हो जाए। इस पर संग्राम के मुसले जवानों में से किसी ने कड़कती हुई आवाज में कहा, हम सब देवदास और संग्राम हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो? राह रोकने वालों का सालार करचती हुई और भड़कती हुई आवाज में बोल उठा, अपनी जुबान को अपने हुलूक में महफूज रखो, मैं सिर्फ देवदास और संग्राम से कुछ कहना चाहता हूँ, बाकी लोगों में से जिसने भी बोलने की कोशिश की अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अहबा के सालार के जवाब में संग्राम के एक और साथी ने मजाहमत करने की धमकी दी। तब उस सालार ने मखसूस इशारा किया। ये इशारा मिलना ही था कि चंद कमाने हरकत में आए, सुनाते हुए तीर निकले और देवदास और संग्राम के कड़कती कई साथी जमीन पर ढेर हो गए। ये सूरत हाल देवदास और संग्राम के लिए बड़ी परेशान कुन थी। अपने घोड़ों को उन्होंने एड़ लगाई और दाएं तरफ हटकर खड़े हो गए। फिर संग्राम कहने लगा, मैं संग्राम हूँ और ये मेरे साथ मेरा पोपीजाद देवदास है। संग्राम और देवदास जब दाएं जानिब हटकर खड़े हो गए, तब उस सालार ने अपने साथियों को फिर मखसूस इशारा किया और इस इशारे के जवाब में तीरों की एक और बाढ़ आई, जिसके नतीजे में देवदास और संग्राम के सारे साथी मौत का लिपना बनकर अपने घोड़ों से गिर गए थे। जब ऐसा हो चुका, तब उस सालार ने फिर कड़कती हुई आवाज में संग्राम और देवदास को मुखातब किया, तुम दोनों अपने घोड़ों से उतर जाओ। सूरत हाल चूंकि बड़ी हौलनाक हो चुकी थी, अपने साथियों के मारे जाने से संग्राम और देवदास पर वहशत तारी हो चुकी थी, लिहाजा एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों ने जुस्त लगाकर अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए। उस सालार ने फिर उन्हें हुक्म दिया, अपनी तलवारें और ढाल और कमर बंद पट्टियां उतार कर एक तरफ फेंक दो। संग्राम और देवदास ने फौरन उस हुक्म की तकमील की। फिर उस सालार के इशारे पर दो लश्करी आगे बढ़े। संग्राम और देवदास के हथियार पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस मौके पर संग्राम ने बड़ी बेबसी से राह रोकने वाले सालार को मुखातब करके कहा, तुम लोग कौन हो? क्यों तुम लोगों ने नाहक हमारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया है और हमसे हमारे हथियार लेकर हमें नहित्ता करके तुम्हें क्या चाहते हो? आखिर हमने क्या जुर्म किया जिसकी बिना पर तुम हमसे ऐसा सलूक कर रहे हो? तुम हमें मकामी बाशिंदे भी नहीं लगते, परदेसी और अजनबी लग रहे हो, फिर क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? इसलिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान इससे पहले ना कोई अदावत थी ना दुश्मनी। संग्राम यही तक कहने पाया था कि राह रोकने वालों का सालार उसे मुखातब करके इंतहाई खफखफी में कहने लगा, तुम लोग जुर्म भी करते हो और फिर दूसरों से जुर्म की नौयत की तफसील भी जानना पसंद करते हो। तुम लोग अमरत और बेनसार को
और आईने को संग और रोशनी को जुल्मत और कहकशा को गुबार राह कहने वाले लोग हो। तुम हमसे पूछते हो कि तुम लोगों ने क्या जुर्म किया है जिसकी तुम्हें सजा दी जा रही है। तुम लोगों का क्या ये कम जुर्म है कि तुमने एक लड़की को अगवा किया, उसे उठाकर यहाँ लाए, उसे हब्स बेजाब में रखा। देखो, जब कोई जुर्म करता है तो किसी न किसी मौके पर वो जुर्म बोलकर जुर्म करने वाले की तरफ इशारा जरूर करता है। ये भी अपने दिल पर लिख रखो कि कातिल जब किसी को कत्ल करता है तो मकतूल का कोई ना कोई निशान कातिल की निशानदेही जरूर कर देता है। तुमने किसी छोटी मोटी लड़की को नहीं, नहर वाला की राजकुमारी को ओशा देवी के त्योहार से उठाकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया और फिर यहाँ लाकर उसे बंद रखा। इस पर अपनी मर्जी मुसलत करने की कोशिश की। यहाँ तक कहने के बाद मुसलमानों को इस सालार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इस बार उसे मुखातब करते हुए देवदास कहने लगा, हमने ऐसा करके तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो लड़की नहर वाला की राजा भीमदेव की बेटी है जो तुम लोगों का बदतरीन दुश्मन है। वो लड़की हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है और जहां तक मैं तुम्हारे हुलिया देखता हूँ तुम मुसलमान हो, लिहाजा तुम लोगों का उस लड़की से क्या ताल्लुक और वास्ता है और तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तुमने हमारे साथ जो सुलूक किया मैं समझता हूँ तुम नाहक हम पर जुल्म कर रहे हो। हम हिंदू में वो लड़की भी हिंदू है, हम हिंदू में वो लड़की भी हिंदू है। ये हमारा जाती मामला है। मेरे ख्याल में तुम लोगों को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। देवदास जब उस सालार को मुखातब करने के बाद खामोश हुआ तब उसके जवाब में सालार बोल उठा, तुम गुमराह, जालिम और सितमगर किस्म के लोग हो। जालिम औरत किसी कौम, किसी दीन धर्म, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखती हो वो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। औरत तो अपनी जात में सियारों का रूप, सरकरतास लिखी मोहब्बत भरे अल्फाज की खुशबू, रंगों की सदा जैसी तहरीक की मानंद है। कायनात की जात की अंधी गुफाओं में औरत तो एक कुव्वत शब्दात की मानंद है। इस कायनात में औरत वो खुशबू की हंसी और वक्त की नगमे और मोहब्बत की साथ और छिंगार से भी ज्यादा अहमियत रखती है। औरत अपने जात में इनकलाब, अमन की अलामत, हुस्न लाजवाल की हुर्मत और उजालों की सैर से भी ज्यादा अहमियत रखती है। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार जब खामोश हो तब इस बार संग्राम बोल उठा, अगर तुम लोगों का इशारा नहर वाला की राजकुमारी कुमार देवी की तरफ है तो फिर मैं ख्याल करता हूँ कि तुम मुसलमानों के सालार ऐबा के आदमी हो। हमने इस लड़की पर कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं की। ये मेरे साथ मेरा मामूजाद है, नाम इसका देवदास है। ये शुरू से उसे पसंद करता था। हम तस्लीम करते हैं कि हम उसे उषा देवी के त्योहार से उठाया है और हम यहाँ लेकर उसे आए हैं, लेकिन हम गलत नजरिए के तहत नहीं लाए थे। हमने तो बस उससे शादी करने का वादा भी उसने हमसे कर लिया था, लेकिन बाद में उसने अपने वादे से मुकर गई और भाग कर चले गई। संग्राम के खामोश होने पर वो सालार फिर बोल उठा, जालिम, अगर उसने शादी का वादा कर लिया था तो ऐसा उसने वक्त टालने और अपनी जान बचाने की खातिर किया होगा। तुम लोगों ने उसकी नजर में वीरानियां भर दी है। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार रुका, फिर उन दोनों को मुखातब करते हुए कह रहा था, अब हमें बातों में उलझाकर वक्त जाय करने की कोशिश ना करो और अपने घोड़ों पर बैठ जाओ ताकि यहाँ से कूच किया जाए। सालार के अल्फाज पर दोनों चौंक से पड़े थे, परेशानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर संग्राम पूछा, तुम हम दोनों को कहाँ लेकर जाएंगे? इस पर वो सालार बोल उठा, हम तुम दोनों को यहाँ से अपने लश्कर में लेकर जाएंगे, वहां अपने सालार ऐबा के सामने पेश करेंगे। उसके बाद तुम्हें नहर वाला के राजा भीमदेव की तरफ भेजा जाएगा, इसलिए कि तुम उसकी और उसकी बेटी के मुजरिम हो। सजा तुम्हें वही देगा। मेरे ख्याल में तुम्हारे पहुंचने तक राजकुमारी कुमार देवी भी वहां पहुंच जाएगी, लिहाजा उसकी मौजूदगी में नहर वाला का राजा भीमदेव तुम्हारे लिए सजा तजवीज करेगा। इन अल्फाज पर संग्राम, देवदास दोनों कांप गए थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ दोनों ने हाथ जोड़ दिए और सालार की मिन्नत समाजत करने लगे। देवदास कहने लगा, देखो, जो कुछ हमने किया है तुम्हारी निगाहों में एक गलती और जुर्म है, तो हम अपनी इस गलती और जुर्म की माफी मांगते हैं। आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। और फिर ये भी तो सोचो कि राजकुमारी कुमार भी हमारे यहाँ से भाग चुकी है, हो सकता है वो अपने बाप के पास पहुंच चुकी हो। जब एक बाप को उसकी बेटी मिल गई तो फिर तुम लोगों को हमें सजा दिलवाने से क्या हासिल होगा? इस पर वो सालार फिर बोल उठा, हम तुम्हारे मुतालिक अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकते। तुम दोनों से मुतालिक जो हुक्म हमें दे दिया गया है हम उसके पाबंद है और इसी पर अमल किया जाएगा। दोनों वक्त जाये किए बगैर अपने घोड़ों पर बैठ जाओ। वक्त जाये करोगे या बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी हालत तुम्हारे इन साथियों से मुख्तलिफ नहीं होगी। इन अल्फाज में संग्राम देवदास को हिला कर और लर्जा कर रख दिया था। दोनों फौरन अपने घोड़ों पर बैठ गए और उस सालार के कहने पर उसके साथियों ने दोनों को अपने हल्के में ले लिया था। साथ ही उस सालार ने अपने साथियों को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। अपने कुछ साथियों के साथ संग्राम देवदास को उसने ऐबा की तरफ रवाना कर दिया और खुद अपने दूसरे साथियों के साथ उसने राजकुमारी कुमार देवी को माहीगिरों की बस्ती से निकालने के लिए दरिया सरस्वती का रुख किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर के साथ अजमेर के गिरद नवाह का रुख किया था, जहां मुख्तलिफ टोलियों में मुसलमानों के खिलाफ सरकशी बर्पा करने वाले राजपूत जमा हो रहे थे। राजपूतों को जब खबर हुई कि मुसलमानों का एक लश्कर उन पर हमलावर होने के लिए आ रहा है, तो एकजा हुई इधर उधर फैली राजपूतों की टोलियां एक जगह जमा हो गई। अजमेर के नवाह में राजपूतों और मुसलमानों के दरमियान एक बार फिर हौलनाक जंग हुई। इस जंग में कुतुबुद्दीन और ऐबा ने फिर राजपूतों को बदतरीन शिकस्त दी। इस शिकस्त के नतीजे में राजपूत नहरवाला की तरफ भाग गए, इसलिए कि अब नहरवाला का राजा ही एक तरह से उनकी पनाह गाह बना हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के हाथों जब अजमेर के नवाह में राजपूतों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो नहरवाले की तरफ भाग गए, तब कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने लश्कर के साथ उनके ताक़ुब में नहरवाला की तरफ हो लिए। दूसरी तरफ मुसलमानों का सालार बहाउद्दीन तुगलक सुल्तान शहाबुद्दीन के हुक्म के मुताबिक कुलियार की तरफ बढ़ा। कुलियार भी काफी राजपूत जमा हो गए थे। बहाउद्दीन तुगलक कुलियार पर हमलावर हुआ और वहां जो राजपूत जमा हो गए थे उन्होंने तुगलक का डट कर मुकाबला किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती के बावजूद तुगलक ने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी और फातेह की हैसियत से कुलियार में दाखिल हुआ। इस तरह कुलियार पर उसने कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अजमेर के नवाह में कुतुबुद्दीन और ऐबा ने जब राजपूतों को शिकस्त दी और वो नहरवाले की तरफ रवाना हुए, तब अपने कुछ मुखबिरों ने उन्हें इत्तला दी कि बहाउद्दीन तुगलक कुलियार पर हमलावर होकर और वहां राजपूतों को शिकस्त देकर कुलियार पर काबिज हो चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिलफौर तेज रफ्तार कासिद बहाउद्दीन तुगलक की तरफ रवाना किए और उसे कहला भेजा कि वो अपने लश्कर के साथ राजपूतों के पीछे पीछे नहरवाला का रुख कर रहे हैं। लिहाजा ऐबा और उसकी गैर मौजूदगी में वो बदलते हुए हालात पर कड़ी नजर रखे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ नहरवाला की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी थी। एक रोज रात का खाना खाने के बाद राजकुमारी कुमार देवी और किरण कुमारी दोनों अपने कमरे में बैठी बाहम गुफ्तगू कर रही थी, जबकि दूसरे कमरे में भगवान दास और राज सुंदरी दोनों मियाँ बीवी बैठ कर किसी मौजू पर बातचीत कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उस पर कुमार देवी ने फौरन उठकर तोशक खाने की तरफ जाना चाहा, पर भगवान दास अपनी जगह से उठा और उसे मुखातब करके कहने लगा, बेटी बैठे हो, मैं दरवाजा खोले बगैर यही पूछता हूँ कौन है। साथ ही भगवान दास कमरे से निकलकर सीधा शहर में गया और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है। बाहर से हल्की धीमी से आवाज आई, मैं रामदास हूँ, दरवाजा खोलो। यह आवाज सुनकर कुमार देवी और किरण कुमारी दोनों अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में आ गई जहाँ थोड़ी देर पहले राज सुंदरी और भगवान दास बैठे हुए थे। भगवान दास ने आगे बढ़कर बाहर का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते रामदास अंदर दाखिल हुआ। भगवान दास ने फिर दरवाजे के अंदर से जंजीर लगा दी। दोनों उसके सामने वाले कमरे की तरफ गए जहां से भगवान दास उठ गया था। रामदास और भगवान दास दोनों एक ही नशिस्त पर बैठ गए। इस मौके पर रामदास के चेहरे पर दूर दूर तक तमानियत और सुकून था। कुमार देवी को मुखातब करके कुछ कहना ही चाहता था कि इससे पहले ही कुमार देवी से मुखातब करके बोल उठी, बाबा आज तुम्हारे चेहरे मुतमईन और खुशकुन लग रहा है। मेरा दिल कहता है कि तुम आज मेरे लिए मजीद अच्छी खबरें लेकर आए हो। रामदास खुलकर मुस्कुराए, फिर कुमार देवी को कहने लगा, बेटा ये वक्त की सितम जरफी समझो या एक हादसाती इत्तेफाक है कि मैं तुम्हारे लिए दो ही खबरें लेकर आया हूँ। एक खबर अच्छी है, एक बुरी। अब तुम यकीनन मुझसे ये कहोगी कि पहले बुरी खबर कहो बाद में अच्छी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले अच्छी खबर कहूंगा, इसके बाद बुरी। बेटा अच्छी खबर है कि पिछली मुलाकात में मैंने तुम्हें बताया था कि संग्राम और रामदास को ऐबा के मुसलमान जवानों के आने की खबर हो गई थी। लिहाजा वो इस शाहरा की तरफ भाग गए थे जो हांसी से रेवड़ी और कलंजर की तरफ जाती है। मेरे ख्याल में वो कलंजर ही की तरफ भागना चाहते थे, लेकिन ऐबा के आदमी उनके पीछे पीछे थे। लिहाजा उन्होंने देवदास और संग्राम और उनके साथियों को जा लिया। उन्होंने देवदास और संग्राम के सारे आदमियों का खात्मा कर दिया और उनके कुछ मुसलिम साथियों और देवदास और संग्राम को पकड़कर अपने साथ ले लिया, जबकि बाकी मुसलिम जवान मेरी तरफ आए थे। मैं उन्हें इसी हवेली में ठहरा कर आया हूँ जहाँ कभी तुम्हारा क़याम हुआ करता था। बेटा वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे साथ चलो। दरिया के इस पार वो बड़ी बेचैनी से मेरा और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कि रामदास को यहाँ तक कहते कहते रुक जाना पड़ा। इसलिए कि बीच में कुमार देवी बोली, बाबा अगर वो मुझे लेने के लिए आए हैं तो क्या वो सुबह तक इंतजार नहीं करेंगे? क्या वो रात के वक्त ही मुझे यहाँ से लेकर रवाना हो जाएंगे? रामदास ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटा वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मैं उनके कहने पर ही तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। कश्ती उस वक्त साहिल यहीं पर खड़ी है। जो मल्ला मुझे लेकर आया है वो भी मेरा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। लिहाजा तुम्हें मेरे साथ दरिया के उस किनारे जाना होगा ताकि ऐबा के मुसलिम जवान तुम्हें यहाँ से बेहिफाजत निकाल कर नहर वाला पहुंचाए। रामदास जब खामोश हुआ तो किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए कुमार देवी बोल उठी, अगर वो रात के वक्त ही मुझे यहाँ से लेकर खोज करना चाहते हैं तो मैं उनका साथ दूंगी। मैं तो ऐबा की जिंदगी भर ममनून और शुक्रगुजार रहूंगी कि उसने मुझे देवदास और संग्राम के जहन्नुम से निकालने के लिए
अपने आदमी भेजे और उन दोनों उपासों को इसके साथियों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, दम लिया, कुछ सोचा और दोबारा रामदास को मुखातब करते हुए कहने लगी, बाबा अच्छी खबर तो तुमने कही दी, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैं ऐबा के मुस्लिम जवानों के साथ यहाँ से निकलकर जब अपने माता पिता के पास जाऊंगी तो न जाने वो मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे, कैसे कैसे उलझने, कैसे कैसे वसूसात उनके जहनों, उनके दिलों को मुतासिर करेंगे। शायद मेरे मुतालिक वो ये भी सोचेंगे कि अगवा होने के बाद मैं अपनी अजमत और अपने आबरू से महरूम हो चुकी हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊंगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तो उसकी तसल्ली, उसकी तशफ़ी के लिए बड़ी प्यार, बड़ी शफकत में रामदास उसे मुखातब करके कहने लगा, बेटा तुम्हें फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ऐबा के कुछ मुस्लिम जवान रामदास और संग्राम को अपने साथ ऐबा के पास ले गए हैं। बेटा जब तुम नहर वाला पहुंचेगी तो मेरे ख्याल में ऐबा देवदास संग्राम को भी वहां भेज देगा और फिर उनकी मौजूदगी में ही सारी बात तुम्हारे बाप के सामने खुल कर आ जाएगी। इसलिए कि ऐबा ने मुझे इशारा कर दिया था कि वो खुद संग्राम और देवदास के लिए कोई सजा तजवीज नहीं करेगा, उन दोनों को तुम्हारे पिता के पास भिजवा देगा। लिहाजा मैं समझता हूँ जिन वसूसात का तुम इजहार कर रही हो ऐसी कोई नौबत पेश नहीं आएगी। रामदास के खामोश हो जाने पर गहरी सोचों में डूबने के बाद कुमार देवी ने कुछ फैसला किया, फिर कहने लगी, बाबा क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि यहाँ से निकलकर पहले मैं ऐबा के पास जाऊं, उसके बाद नहर वाला का रुख करूं। मैं एक इंतहाई अहम और नाजुक मौजू पर ऐबा से गुफ्तगू करना चाहती हूँ और उसे मिलकर ही मैं नहर वाला जाना चाहती हूँ। कुमार देवी के खामोश होने पर रामदास ने उसे मुखातब किया, बेटा तुम एक अच्छी खबर तो मुझसे सुन चुकी हो, तुम बुरी खबर को भूल गई हो। मेरे ख्याल में जब मैं बुरी खबर तुमसे कहूँगा तो तुमने जो नहर वाला जाने से पहले ऐबा के पास जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है, उस खबर के दौरान मेरे ख्याल में तुम्हें तुम्हारी इस ख्वाहिश का खुद ब खुद ही जवाब मिल जाएगा। रामदास के इन अल्फाज पर कुमार देवी चौंकी थी, फिर बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए वो कह रही थी, अच्छा अगर ये बात है तो दूसरी खबर जैसे तुम बुरी खबर कह रहे हो, कहो वो क्या है, ताकि मैं भी जानूं कि हालात मेरे खिलाफ कैसे करवट ले रहे हैं। कुमार देवी जब खामोश हुई तब रामदास ने कहना शुरू किया, बेटा जो कुछ मैं कहने लगा वो तुम्हारे लिए वाकई दुख और अफसोस का बाइस होगा, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है वही तुमसे कहूँगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार तुम्हारे पिताजी को मुसलमानों के हाथों इससे पहले शिकस्त हो चुकी है। इस वक्त तुम यही थी। अब जो नई खबर आई है वो ये कि मुसलमानों का एक लश्कर फिर नहर वाला पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, इसलिए कि मुसलमानों के बकौल तुम्हारे पिताजी से एक नहीं कई मौके पर गलतियां हुई। पहली गलती वो ये कि शुमार करते हैं कि नहर वाला के राजा ने तराइन के मैदानों, तराइन की दोनों जगहों में हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं के साथ दिया। वो ये भी कहते हैं कि जब मुसलमानों ने नहर वाला के राजा यानी तुम्हारे पिताजी को शिकस्त देकर अपनी पहली पसपाई का इंतकाम लिया तो राजा को अमन और सुलह के साथ रहना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि तुम्हारे पिताजी ने मुसलमानों से इंतकाम लेने की ठान ली थी। लिहाजा उसने उस वक्त अपना एक लश्कर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए भिजवाया, जिस वक्त राजपूत बियाना के मकाम पर मुसलमानों से टकराने का आज़म किए हुए थे। बियाना में शिकस्त के बाद राजपूत जब अजमेर की तरफ भागे तो उसमें नहर वाला के भी लश्करी थे। अजमेर के नवाह में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने जब उन्हें शिकस्त दी तो शिकस्त खुर्दा सारे राजपूतों के अलावा वो लश्करी जिन्हें तुम्हारे पिताजी ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना किया था वो नहर वाला की तरफ भाग गए हैं, और अब कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों अपने लश्कर के साथ उन्हें शिकस्त खुर्दा राजपूतों का ताकुब करते हुए नहर वाला का रुख कर रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद रामदास रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, बेटा मुसलमानों का यूं अपने लश्कर के साथ नहर वाला की तरफ जाना अब किसी नतीजे के बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने बहुत से मौके पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि मुसलमान इस बार फिर नहर वाला पर हमलावर होंगे और नहर वाला पर कब्जा करके रहेंगे, इसलिए कि पहली बार जब मुसलमान तुम्हारे पिता से टकराए, तुम्हारे पिता अपने लश्कर के साथ शहर में महसूर हो गए थे। इस वक्त भी जो जवाबी कार्रवाई करते हुए मुसलमान शहर पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में चूना बयाबान के हालात खराब हो गए थे। लिहाजा नहर वाला का मुहासरा करने के बजाय कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा लश्कर को लेकर बियाना की तरफ चले गए। अब जो वो नहर वाला की तरफ बढ़े हैं तो मेरे ख्याल में कोई फैसला कुन जंग करेंगे। बेटा अगर इस मौके पर तुम यहाँ से निकलकर वक्त जाए के बगैर नहर वाला की तरफ जाओगी तो तुम उस जंग को रोक नहीं सकती हो। यह खबर सुनकर राजकुमारी कुमार देवी उदास और परेशान हो गई थी। दुख भरे अंदाज में कहने लगी, रामदास मेरे मुहतरम, मैं ये जंग कैसे रुकवा सकती हूँ। अब जबकि मुसलमानों के बकौल मेरे बाप से गलतियां हो चुकी है,
तो मुसलमान हमलावर होने से टलेंगे नहीं तो नहीं, और वो फिर मुसलमानों में मेरी क्या हैसियत है कि मैं जंग को रुकवा सकूं। मुसलमान के लश्कर में एक ऐबा की ज़ात है जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन माजी में उससे मेरा सलूक ऐसा था जिसकी बिना पर वो शायद मेरी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। बहरहाल मैं यहाँ से निकलकर वक्त ज़ाय के बगैर नहर वाला जाना पसंद करूंगी और देखूंगी कि मुसलमानों के हमलावर होने से हालात क्या रुख करते हैं। रामदास उठ खड़ा हुआ कहने लगा, बेटा अगर ये बात है तो फौरन खड़ी हो जाओ, वक्त ज़ाय ना करे। ऐबा के लश्करी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें फौरन यहाँ से कूच करना चाहिए। भगवान दास, राज सुंदरी और किरण कुमारी उठ खड़ी हुई। कुमार देवी ने अपना मुख्तसर सा सामान सिमटा। भगवान दास, राज सुंदरी और किरण कुमारी से वो रुखसत हुई। फिर रात की गहरी तारीकी में वो घर से निकलकर रामदास के साथ हो ली थी। दोनों बड़ी राजदारी के साथ दरिया के किनारे आए। वहाँ एक कश्ती उन दोनों के मुंतजिर थी। उसी कश्ती में रामदास बाएं किनारे से दाएं किनारे की तरफ आया। दोनों कश्ती में बैठे और मल्लाह ने चुपचाप कश्ती को हरकत में लाते हुए बाएं किनारे की तरफ जाना शुरू कर दिया। दूसरे किनारे पर जाकर कश्ती जब रुकी, रामदास और राजकुमारी कश्ती से उतरी। चंद कदम उस इमारत की तरफ बढ़ी जिसके अंदर किसी दौर में देवदास और संग्राम ने कुमार देवी को मबहूस करके रख दिया था। फिर एक जगह कुमार देवी रुक गई और रामदेव को मुखातब करते हुए उसने पूछ लिया, बाबा तुमने ऐबा के आदमियों को कहाँ निभाया है, कहाँ बिठाया है? जवाब में रामदास ने बेबसी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटी मैंने उन्हें कहाँ बैठाना है? संग्राम की इमारत में तो मैं नहीं बैठा सकता, इसलिए कि संग्राम का बाप अभी जिंदा है। वो कभी कभार ही इस इमारत की तरफ आता है। उसके बावजूद अगर मैं ऐबा के आदमियों को इस इमारत में ठहराता तो मेरे लिए खतरात उठ सकते थे। इसी बिना पर मैंने उन्हें उस इमारत के पुष्टि हिस्से की तरफ, जहाँ दरिया के किनारे झाड़ श्रृंगार का सिलसिला शुरू होता है, वहाँ बैठा रखा है। वो खुद भी किसी इमारत में घुसकर बैठने के लिए तैयार न थे और वही बैठना पसंद किया जहाँ मैं तुम्हें अब लेकर जा रहा हूँ। रामदास जब खामोश था तो तफक्कुरात भरे अंदाज में उसे मुखातब करते हुए कुमार देवी कहने लगी, बाबा जिन लोगों के पास तुम मुझे लेकर जा रहे हो, जाने वो कैसे हैं? यहाँ से ले जाने के बाद मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? वो पता नहीं मुझे नहर वाला या ऐबा के पास पहुँचाते भी हैं या नहीं। रामदास मुस्कुराया और धीमे से लहजे में कहने लगा, बेटा जिंदगी में किसी न किसी पर तो एतबार करना ही पड़ता है, और फिर ऐसे माहौल और ऐसे हालात में तो एक नहीं कई लोगों पर एतबार करना पड़ता है। जहाँ तक ऐबा की इन साथियों का ताल्लुक है तो मुसलमान है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें एक बहन की तरह अपने साथ रखेंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा कर दम लेंगे, इसलिए कि उन्होंने वापस जाकर ऐबा को बताना होगा कि तुम्हें उन्होंने कहाँ पहुंचाया। रामदास के अल्फाज पर कुमार देवी किस कदर मुतमईन हो गई थी। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाकर कुमार देवी ने देखा उनके सामने कुछ हयूले दिखाई देने लगे थे। जब मजीद आगे बढ़े तो ऐबा के मुसले जवाब झाड़ियों के अंदर जमीन की नंगी पीठ पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने रामदास और कुमार देवी को आते देखा तो सब खड़े हो गए। रामदास आगे बढ़ा और जिस सालार ने रेवाड़ी के आसपास देवदास और संग्राम से गुफ्तगू की थी उसी को मुखातब करते हुए रामदास कहने लगा, ये राजकुमारी कुमार देवी है और इसकी हैसियत मेरे यहाँ एक बेटी सी है। रामदास के अल्फाज के जवाब में वो सालार मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर इनकी हैसियत आपके यहाँ बेटी सी है तो हमारे यहाँ इनकी हैसियत एक बहन की सी होगी। इन अल्फाज पर कुमार देवी चौंकी थी। रामदास के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उस सालार को मुखातब करते हुए रामदास कहने लगा, रास्ते में बेचारी फिक्रमंद हो रही थी कि आप लोग न जाने इसके साथ क्या सलूक करेंगे, उसे इसकी मंजिल तक पहुंचाते भी हैं या नहीं। रामदास को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि वो सालार उसकी बात काटते हुए खुशगवार लहजे और नरम अल्फाज में कहने लगा, जो काम हमारे जिम्मे लगाया गया है उसे हम पूरा करना अपना फर्ज ही नहीं इबादत ख्याल करते हैं। राजकुमारी को हमारे मुतालिक फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना हमारे सालार का हुक्म है और उसमें किसी किस्म की कोताही को हम गुनाह ख्याल करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार रुका। फिर बराह रास्त वो राजकुमारी कुमार देवी को मुखातब करते हुए कह रहा था, खातून तुम्हारी हैसियत हमारे यहाँ एक बहन सी है, लेकिन तुम्हारे यहाँ अगर औरत की इज्जत इसका एहतराम नहीं है तो फिर तुम अपने दिल में ख्याल तो मत करो कि औरत से मुतालिक हमारे उसूल भी तुम ही जैसे होंगे। सालार के जवाब में कुमार देवी खुश तबी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने जो मुझे बहन कहा है तो इस वजह से मेरे दिल में, मेरे मन में तुम्हारी इज्जत को और ज्यादा जिला बख्श दी है। लेकिन क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुमने कैसे कह दिया कि हमारे यहाँ औरत की इज्जत और एहतराम नहीं है? सालार मुस्कुरा कहने लगा, मेरी बहन ये बात मैं तो नहीं कहता, तुम्हारे बड़े बड़े पंडित और तुम्हारे बड़े बड़े मजहबी पेशवा ही कहते हैं। तुम ये बात तो तस्लीम करोगी कि हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क समझा जाता है क्योंकि इसकी मजहबी हैसियत हमेशा दूसरी हैसियतों पर गालिब रही। लेकिन तुम इस बात को भी तस्लीम करोगी कि यहाँ औरत को गुलामी और महकमी की जिंदगी से कभी नजात नहीं मिली। हिंदुस्तान के मशहूर मुक्तनीर
मुनव्वराज ने औरत के बारे में कहा था, औरत लड़कपन में अपने बाप के इख्तियार में रहे, जवानी में शोहर के इख्तियार में, बेवा होने के बाद अपने बेटों के इख्तियार में रहे, खुद मुख्तार होकर कभी ना रहे। एक और मौके पर कहा, औरत ख्वाह नाबालिग हो ख्वाह जवान या बूढ़ी, वो घर में कोई भी काम खुद मुख्तारी से ना करे। एक और मौके पर तुम्हारे ही पंडित मजीद कहते हैं, औरत के लिए कुर्बानी और बरत करना गुनाह है, सिर्फ शोहर की खिदमत करना चाहिए और उसको चाहिए कि शोहर के मरने के बाद दूसरे शोहर का नाम भी ना ले, कम ख्वारगी के साथ अपनी जिंदगी के दिन पूरे करे। तुम्हारे मजहब के पेशवा ये भी कहते हैं कि झूठ बोलना औरतों का जाती खासा होता है। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुमार देवी को कहने लगा, बीवी तुम्हारे मजहबी कुतुब ये भी कहते हैं कि दरिया, मुसले, सिपाही, पंजे और सींग रखने वाले जानवर, बादशाह, औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मजहबी कुतुब मजीद कहती है, झूठ बोलना, बगैर सोचे काम करना, फरेब और हिमाकत औरत की जिबली ऐब है। मजीद कहते हैं, शहजादों से तहजीब और इखलाक, आलिमों से शीरी कलाम, कुमारबाजों से दरोग गोई और औरतों से मक्कारी सीखनी चाहिए। मेरी बहन, ये जो बातें मैंने कही है सब तुम्हारी मजहबी कुतुब में लिखा हुआ है। मेरी बहन, जरा हिंदुस्तान के अलावा दूसरे गैर मज़ाहिब पर भी निगाह डालो। इस्लाम की निगाहों में इंसान मिन हैसुल इंसान अपनी खलकत और सिफात के लिहाज से फितरत का एक अजीम शाहकार है और वो अपनी ज़ाहिरी सूरत और बातिनी खुसूसियत दोनों के एतबार से कायनात की एक मुकर्रम और मुहतरम हस्ती है, जिसके शर्फ और फजीलत और बुजुर्गी का मुकाबला दुनिया की कोई और मखलूक और कुव्वत नहीं कर सकती। इस्लाम के इस उसूल को और इस तसव्वुर को तस्लीम करने के बाद इंसान खा वो मुर्दा हो, मर्द हो या औरत, उसकी अजमत फर्श खाक से बुलंद होकर कायनात और माहो व नुजूम से भी कहीं आगे निकल जाती है और उसे कुदरती तौर पर एक ऐसा ऊंचा मकाम हासिल होता है कि फिक्र के नज़र जिससे बढ़कर बुलंदी का कोई तस्वर मुमकिन ही नहीं रहता। इसके अलावा मेरी बहन, हमारे मुक़द्दस किताब ये भी कहते हैं कि जिस मर्द और औरत ने भी अच्छा काम किया, अगर वो मोमिन है तो हम उसको एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और उनके बेहतरीन अमाल का जिन्हें वो करते हैं अजर देंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार रुका, फिर दोबारा कह रहा था, मेरी अजीज बहन, बुरा मत मानना, औरत से मुतालिक तुम्हारे दिन और हमारे धर्म के उसूल में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हारे सामने कोई लंबा चौड़ा वाज नहीं करना चाहता। मैं जो कुछ मैंने कहा ये सब कुछ कहने से मेरा मकसद है कि एक बहन के हैसियत से तुम्हें हम पर एतबार करना चाहिए। मैं तुम्हें जमानत देता हूँ कि जिस तरह तुम हमारे हवाले की जा रही हो इसी तरह हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएंगे। यूँ जानो ये जिस कदर मेरे साथी मेरे साथ खड़े हैं, इन सबसे बेहतर, इन सबसे तुम्हारा बहन भाई का रिश्ता है। अब मजीद कहो, क्या कहना चाहती हूँ। जब तक वो सालार बोलता रहा, कुमार देवी बड़े गौर से, बड़े अजीब से रद्द अमल का इजहार करते हुए सुनती रही। जब वो खामोश हुआ तब हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगी, मेरे भाई, मेरे कहने के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, ना ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बस इतना कहूंगी कि मैं आंखें बंद करके तुम लोगों पर एतबार और भरोसा करती हूँ। बोलो क्या कहते हो। इस पर वो सालार मुस्कुराया और कहने लगा, अब मैं कहता हूँ कि सामने जो घोड़ा है मेरी बहन, तुम उस पर सवार हो जाओ और घोड़ा हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और फिर हम यहाँ से कूच करेंगे। कुमार देवी चुपचाप आगे बढ़ी। एक मुसले जवान ने भागकर उस घोड़े की भाग पकड़ ली। कुमार देवी जब घोड़े पर बैठ गई तब उसने घोड़े की बाग उसे थमा दी। उसके बाद वो सालार उसके साथी वहां से लेकर रवाना हो गए थे। अजमेर के नवाह में शिकस्त खाने के बाद जिन राजपूतों ने नहरवाला का रुख किया था, उनका सरबराह और सालार एक राजपूत कोर सिंह था। नहरवाला की तरफ भागते हुए उसने अपने आगे आगे तेज रफ्तार कासिद नहरवाला के राजा भीमदेव की तरफ रवाना किए और उससे इल्तिमास की कि वो अपने लश्कर के साथ नहरवाला शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में सफें दुरुस्त कर ले। मुसलमान हमारा ताक़ुब करते हुए आ रहे हैं और हम तुम्हारे साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने भीमदेव को यह भी तंबीह कर दी थी कि अगर उनका कहा मानते हो, भीमदेव अपने लश्कर को लेकर शहर से बाहर ना निकला तो मुसलमान उन्हें तो कुचल ही चुके होंगे, लेकिन भीमदेव पर भी हमलावर होकर उसे और उसके अहले खाना को जिंदा ना छोड़ेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान के दूसरे सालार बहाउद्दीन तुगलक ने अपने पहले कुलियार के नवाह में राजपूतों को शिकस्त दी। उसके बाद उसने कुलियार पर कब्जा कर लिया। वहां से भी शिकस्त खुर्दा राजपूत एक बहुत बड़े जित्ते की सूरत में नहरवाला की तरफ भागे। ये सारी खबरें नहरवाला के राजा भीमदेव को भी मिल चुकी थी। अजमेर और कुलियार दोनों शहरों की तरफ से आने वाली राजपूतों की वजह से उसे कुछ हौसला हुआ और उसने फिर इरादा कर लिया कि मुसलमानों ने जो उससे पहले नहरवाला के नवाब में उसे शिकस्त दी थी वो उनसे उस शिकस्त का बदला लेगा। लिहाजा जो ही राजपूतों का पैगाम भीमदेव को पहुंचा, भीमदेव और उसका बेटा रामदेव दोनों अपने लश्कर को लेकर नहरवाला के बाहर खुले मैदानों में पड़ाव कर गए। इस मौके पर भी रामदेव ने अपने बाप भीमदेव को मुखालिफत की कि राजपूतों का कहा मानते हुए हमें मुसलमानों से नहीं टकराना चाहिए।
लेकिन भीमदेव अपनी जिद और हट धर्मी पर कायम था। उसने रामदेव की कोई बात ना मानी और राजपूतों के साथ मिलकर उसने मुसलमानों का मुकाबला करने की ठान ली। नाचारा रामदेव अपने बाप के साथ हो लिया। अब राजपूतों की खुशकिस्मती के नहरवाला से दूर ही और राजपूतों के दोनों ग्रोह यानी कुलियार और अजमेर की तरफ से भागकर नहरवाला की तरफ जाने वाले राजपूत आपस में मिल गए। इस तरह उनकी ताकत और कुव्वत में इजाफा हो गया और उन सारे मुसलिम राजपूतों ने कौर सिंह को अपना सरबराह और अपना सालार मुकर्रर कर लिया। इस तरह कौर सिंह जब राजपूतों के एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर नहरवाला की नवाह में पहुंचा तो उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही राजा भीम जो अपने लश्कर के साथ वहां पड़ाव कर चुका था। इस तरह कौर सिंह जब राजपूतों के एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर नहरवाला की नवाह में पहुंचा तो उसके वहां पहुंचने से पहले राजा भीम जो अपने लश्कर के साथ वहां पड़ाव कर चुका था। भीमदेव ने राजपूतों के सालार कौर सिंह और उसके लश्कर का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। उनकी रिहाइश के लिए उम्दा खीमों के अलावा उनकी खुराक का भी बेहतरीन बंदोबस्त किया। भीमदेव के इस सुलूक से राजपूत खुश हो गए। फिर राजपूतों का सालार कौर सिंह अपने चंद छोटे सालारों के साथ भीमदेव और रामदेव दोनों बाप बेटा अपने सालारों के साथ सब एक जगह जमा हुए। उस मौके पर भीमदेव ने कौर सिंह को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, कौर सिंह, ये जंग हमने मुसलमानों से अपनी जिंदगी की आखिरी जंग समझकर लड़ना होगी। तुम जानते हो एक बार पहले मैंने मुसलमानों के सुल्तान शहाबुद्दीन को शिकस्त दी थी और उसके बाद मुझ पर हमलावर होकर मुसलमानों ने मुझे अपनी इस शिकस्त और पसपाई का इंतकाम ले लिया। अब मुसलमान फिर इस शहर का रुख कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इनसे अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का बदतरीन इंतकाम लूं। भीमदेव के खामोश होने पर तब छाती तानते हुए कौर सिंह कहने लगा, भीमदेव मेरे मोहतरम, तुम सिर्फ गुज़िश्ता एक शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते हो, जबकि हम मुसलमानों से तराइन के बाद जितनी जंगें हुई है और उनमें हमें पसपाई इख्तियार करना पड़ी है, उन सब का हम मुसलमानों से इंतकाम लेने का तहिया किए हुए हैं। यहाँ तक कहने के बाद कौर सिंह रुका, फिर वो भीमदेव और बाकी सारे सालारों को मुखातब करते हुए कह रहा था, मेरे अजीजों, मैं तराइन के दोनों जंगों के अलावा बाद में जितनी जंगें मुसलमानों से हुई उनमें हिस्सा ले चुका हूँ। मैंने राजा जयचंद का भी साथ दिया, बाद में भीमराज की तरफ से भी लड़ा, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें हर मौके पर मुसलमानों के हाथों शिकस्त उठाना पड़ा। बड़ी हैरत की बात यह कि अक्सर मौके पर मुसलमानों के लश्कर की तादाद हमसे काफी कम हुआ करती थी, फिर भी वही गालिब और फातेह मंद रहे। अब इस जंग में मुसलमानों को मगलूब करने के लिए मेरे जहन में एक तजवीज़ है। मेरा अपना अंदाजा है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो हम मुसलमानों की शिकस्त और अपनी कामयाबी और फतह को यकीन बना सकते हैं। कौर सिंह की इन अल्फाज पर भीमदेव की आंखों में चमक पैदा हुई। फिर बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कौर सिंह मेरे अजीज, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई तजवीज़ है तो कहो, रुके हुए क्यों हो? अगर इस पर अमल करते हुए हम मुसलमानों को नीचा दिखा सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशबख्ती होगी, इसलिए कि मुसलमानों को शिकस्त देना अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश और आरजू है। भीमदेव के खामोश होने पर कौर सिंह ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जिस तजवीज़ पर मैं अमल करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मुसलमानों का लश्कर हमारे सामने आकर पड़ाव करे तो उन्हें एक दिन और एक रात मुकम्मल आराम करने का मौका दे दिया जाए। आती उन पर हमलावर नहीं होंगे। हमारे ऐसे करने से एक तरह से मुसलमानों पर हमारा एक दबदबा तारी हो जाएगा और उनके सालार लश्कर ये ख्याल करने लगेंगे हम उन्हें आराम और सुस्ताने का मौका देने के बाद उनसे जंग करने का तहिया किए हुए हैं। इस तरह हमारी तरफ से उनके दिल में जुस्तजू रहेगी कि न जाने मुसलमानों को आराम और इस्तिराहत मौका देने के बाद हम उन पर कैसी ज़रब लगाते हैं और किस अंदाज में उन पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाते हैं। ये तो मुसलमानों के खिलाफ हमारा पहला हरबा होगा। अपनी फतह का दर खोलने के लिए दूसरा तरीका हम ये इस्तेमाल करेंगे, जब दोनों लश्कर जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करें तो मैं अपने लश्कर के बीच में रहकर और मुसलमानों के सालार कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों के नाम लेकर उन्हें इंफरादी मुकाबले की दावत दूंगा। उन दोनों में से जो भी मेरे साथ इंफरादी मुकाबला करने के लिए उतरेगा, मुझे उम्मीद है कि मैं लम्हों के अंदर उसे मैदान जंग में ढेर करके रख दूंगा। इस तरह जब इंफरादी मुकाबले में मुसलमानों का एक सालार मेरे हाथों मारा जाएगा तो मुसलमानों का सारा जोश, उनके सारे जज्बे, उनका सारा खुलूस, उनकी सारी जान सारे उनके सारे वलवले खाक और राख होकर रह जाएंगे। कौर सिंह जब खामोश होता तब उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए भीमदेव कहने लगा, कौर सिंह, जो कुछ तुमने कहा है अगर हम उस पर अमल करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूं हम अपनी फतह मंदी का दर खोल लेंगे। इस मौके पर मैं एहतियातन तुमसे एक बात भी कहूं, जब तुम इंफरादी मुकाबले की दावत दोगे तो मेरा अंदाजा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बजाय ऐबा इंफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगा। ऐबा को मैं और मेरे अहल खाना अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कि एक मौके पर वो हमारे यहाँ क़याम भी कर चुका है। भीम जो ये तक कहने पाया था कि कौर सिंह बोल उठा, उसने किस तरह यहाँ क़याम किया था इसकी तफसील का मुझे इल्म है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में इससे आगे आप ये कहना चाहेंगे कि मुझे उससे मुहतात रहना चाहिए।
ये इसलिए कि वो एक उम्दा तेगजन है। भीम दो मेरे मोहतरम, उसे जरा इंफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरने दे दो, फिर देखेंगे। यहाँ तक कहते कहते कौर सिंह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि शुमाल की तरफ से गिर बादल उठते दिखाई दिए थे। इस पर कौर सिंह उठ खड़ा हुआ, उसकी तरफ देखते हुए भीम दो और दोनों के सालार खड़े हो गए। फिर कौर सिंह कहने लगा, मुसलमान अपने लश्कर को लेकर पहुंच चुके हैं और इस बार नहर वाला के बाहर मैदानों में उनके साथ जंग करने का मजा रहेगा। उनकी झोली उनके दामन में ऐसी शिकस्त, ऐसी हजीमत, ऐसी बदनामी डालेगी जिसके दाग वो जिंदगी भर न धो पाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद कौर सिंह रुका, फिर कहने लगा, भीम दो मेरे मोहतरम, मुसलमानों के लश्कर में फकत दो ही बड़े और सरकर्दा सालार हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा। उनका एक और सालार बहाउद्दीन तुगलक शायद कुलियार ही में रह गया है, जबकि खुद उनका सुल्तान अपने एक और बड़े सालार हुसैन खरमल के साथ गजनी जा चुका है। इनफरादी मुकाबले में अगर ऐबा या कुतुबुद्दीन में से कोई मेरे हाथों मारा जाता है तो याद रखना, उसकी मौत मुसलमानों की शिकस्त और हमारी फतह मंगी पर मोहर लगा देगी। यहाँ तक कहने के बाद कौर सिंह खामोश हो गया, इसलिए कि मुसलमानों का लश्कर पहुंच गया था। लश्कर के आगे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबा थे। अपने सामने भीम दो और कौर सिंह के लश्कर को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने अपने लश्कर को रोक दिया। मुसलमानों को खतरा था कि शायद उनके आते ही दुश्मन उन पर हमलावर हो जाएगा, लिहाजा वो अपनी सफें दुरुस्त करके बिल्कुल मुस्ताद हो गए थे। कुछ देर ऐसा ही समय रहा। जब भीम दो और कौर सिंह के लश्कर की तरफ से कोई हरकत न हुई, तब मुसलमानों में भी कुछ देर खामोशी रही। कुछ ही देर बाद लश्कर के पीछे पीछे मुसलमानों की बार बरादरी के जानवर और ऊंट भी पहुंच गए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा दुश्मन के अचानक हमले का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद था और दूसरे हिस्से ने बड़ी तेजी के साथ पुश्त की जानिब खीमों का एक शहर आबाद कर दिया था। इस तरह भीम दो और कौर सिंह के लश्कर के सामने मुसलमानों ने भी अपना पड़ाव कायम कर लिया था। एक दिन और एक रात दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। फिर भीम दो और कौर सिंह ने मशवरा करने के बाद अपने लश्कर में जंग की इब्तिदा करने के लिए तबल बजवा दिए थे। साथ ही उन्होंने अपने लश्कर की सफें दुरुस्त कराना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ मुसलमान पहले ही मुस्तैद और तैयार थे। पड़ाव करने के बाद उनके लश्कर का सिर्फ आधा हिस्सा काम करता था और आधा दुश्मन पर निगाह रखने के लिए तैयार और मुस्तैद रहता था। जबकि भीम दो और कौर सिंह ने जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करना शुरू की। ऐन उसी लम्हे कुतुबुद्दीन और ऐबा भी अपने दूसरे सालार के साथ अपने घोड़ों को इधर उधर दौड़ाते हुए अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करने लगे थे। अपनी तंजीम दुरुस्त करने के बाद कुतुबुद्दीन और ऐबा अपने लश्कर के साथ अपने लश्कर के आगे आ खड़े हुए। उसी लम्हे राजपूतों के लश्कर का सालार कौर सिंह, जो अपने लश्कर के आगे आगे था, अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाता हुआ दोनों लश्करियों के दरमियान आया। फिर कुतुबुद्दीन और ऐबा का नाम लेते हुए उसने उन दोनों में से किसी एक को इंफरादी मुकाबले पर उतरने की दावत दी। इस मौके पर अपने लश्कर के सामने खड़े ऐबा ने बड़े गौर से कुतुबुद्दीन की तरफ देखा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, मोहतरम भाई, मुकाबले पर उतरने वाला ये राजपूतों का सरदार है। मैं पिछली जंगों में कई मौके पर इसे देख चुका हूँ। मेरे ख्याल में नहर वाला के राजा भीम दो से मशवरा करने के बाद राजपूतों ने यह फैसला किया है कि पहले हमें इंफरादी मुकाबले की दावत दी जाए। उन्होंने आपको और मेरा नाम लेकर इस इंफरादी मुकाबले के लिए ललकारा है। ऐसा करके ये चाहते हैं कि अगर इंफरादी मुकाबले में हम दोनों में से किसी एक का खात्मा हो जाएगा तो हमारे लश्कर में बददिली की फिजा फैल जाएगी और ये लोग शिकस्त को हमारा मुकद्दर बना देंगे। लेकिन मेरे अजीज भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शिकस्त को हमारा मुकद्दर नहीं बनने दूंगा। आप अपने लश्कर के सामने रहिए, मैं उस राजपूत के मुकाबले पर जाता हूँ, फिर देखता हूँ ये कितनी देर तक इंफरादी मुकाबले में मेरे सामने ठहरता है। जवाब में जब कुतुबुद्दीन ने ऐबा को इस बात में गर्दन हिलाई, ऐबा के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। अपने घोड़े को उसने एक अंगेख्त कर देने वाली मुहिज लगाई और घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ दोनों लश्करों के दरमियानी हिस्से की तरफ बढ़ा। कौर सिंह के सामने आने के बाद ऐबा ने जब एक झटके के साथ अपने घोड़े की बागें खींची तो घोड़ा अपनी अगली दोनों टांगें उठाता हुआ फिजा में अलिफ हुआ और फिर इंतहाई एहतिजाजी अंदाज में हिलहिलाने लगा था। इस मौके पर कौर सिंह ने देखा ऐबा के हाथ में बरहना तलवार थी और जिस हाथ से उसने बागें पकड़ रखी थी उसमें ढाल भी थाम रखी थी। फिर ऐबा कौर सिंह के सामने आया और तल्ख लहजे में उसे मुखातब करते हुए उसने पूछा, मुकाबला शुरू होने से पहले ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कौर सिंह ने ऐबा की तरफ घूरा, फिर कहने लगा, पहले तू कहे कुतुबुद्दीन ऐबक है या ऐबा। ऐबा की छाती तन गई थी। खा जाने वाले अंदाज में उसने कौर सिंह की तरफ देखा, कहने लगा, मैं ऐबा हूँ, जालिम के बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक। तू इंफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उस वक्त उतरेगा जब तू मुझे जेर कर लेगा। ऐबा जब खामोश हो तब हल्की हल्की मुस्कुराहट में कौर सिंह कहने लगा, अगर तू ऐबा है तो सुन, इन सरजमीन धनलकों में तू मेरे साथ मुकाबले के दौरान इस तरह फड़फड़ा कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगेगा जिस तरह कोई खाइल और मजरूह परिंदा अपने जख्मी परों से उड़ान करते वक्त फड़फड़ा कर रह जाता है।
ऐबा मैं तेरे लिए दुख दर्द की वो किताब लिखूंगा जिसे तू पढ़ नहीं सकेगा। कुरसुम की इस गुफ्तगू के जवाब में खाया जाने वाले अंदाज में ऐबा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तेरे जैसे सुरमा की ऐसी तैसी तू तो इस तरह गुफ्तगू कर रहा है जैसे खलाओं की इन बेकिनार वसातों और जमीन की सरगस्ता में सिर्फ तेरी माँ ने ही तुझे जैसे एक सुरमा को जन्म दिया है और कोई तू जैसा पैदा ही नहीं हुआ है। कुरसुम अभी तो अपने ख्वाबों और अपनी सफात के खौल में रहकर मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। जब तेरे मेरे दरमियान मुकाबला शुरू होगा तो तू तब देखेगा कि तेरे मुकद्दर में क्या आता है। कुरसुम एक बात याद रखना, ये मौत का मैदान है। मैं तुम्हें पहले से आगाह कर देता हूँ, मुकाबले के दौरान मैं तेरे जिस्म ही को नहीं तेरी आत्मा तक को मजरूह करता चला जाऊंगा। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा रुका, फिर कुरसुम को मुखातब करते हुए पहले से भी ज्यादा होलनाक अंदाज में कह रहा था, कुरसुम तेरा नाम भी तुझे मौत की दावत दे रहा है। तू कुरसुम है और देखेगा कोर तुझे पुकार रही है। तेरे जैसे इंफरादी मुकाबले पर उतरने वाले पहले शीशे के हिसार में खड़े होकर गुफ्तगू करने के बड़े माहिर होते हैं और जब दूसरे संग बारी शुरू करते हैं तो फिर तेरे जैसे अपनी जात के सोज और इस्तिराब में खोकर रह जाते हैं। ऐबा की इस गुफ्तगू से कुरसुम ताव खा गया था। अपनी तलवार और ढाल लहराता हुआ आगे बढ़ा, फिर ऐबा पर बरहम चीखते शरारतों और मौत की लश लश करती तार पोतियों की तरह हमलावर हुआ। दूसरी तरफ कुरसुम के वार को रोकने के बाद ऐबा ने भी अपने काम की इब्तिदा की और वो भी मौत की छगड़कों की पत्थरों की तरह हमलावर हो गया था। ऐबा इस तेजी और इस शिद्दत के साथ कुरसुम पर हमलावर हो रहा था जैसे कोई जियत का कारवान में दर्द का अनोखा इनकलाब बर्पा करने का अज़म कर चुका हो। कुछ देर मुकाबला करने के बाद कुरसुम ने अंदाजा लगाया कि उसने जो अंदाजा लगाया था ऐबा उससे कहीं ज्यादा तेज जनी में माहिर और हमलावर होने में तेज और सख्त जान है। उसने कई मौके पर कोशिश की कि किसी जगह रुक कर ऐबा पर ऐसा हमला करे कि उसे अपने सामने जेल और बेबस करके रख दे, लेकिन हर मौके पर ऐबा की जवाबी कार्रवाई ने उसे नाकाम बनाकर रख दिया और अब वक्त की आंख देख रही थी कि कुरसुम के अंदर थकावट के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। इस मौके पर ऐबा ने अपनी तलवार से एक जोरदार झटका देते हुए कुरसुम को पीछे धकेला, फिर हल्का सा कहका लगाते हुए उसने कुरसुम को मुखातब किया, कुरसुम मैं देख चुका हूँ तुझमें थकावट के आसार नमूदार हो चुके हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि मुकाबला शुरू होने से पहले तू हवस परस्ती के ख्वाहिश और लताफतों भरी जवानी के जोश में मुझसे गुफ्तगू करता था। तेरा वो जोश, तेरा वो जज्बा फीका पड़ चुका है। उसके साथ ही ऐबा ने फिर कुरसुम पर हमलावर होना शुरू कर दिया। कुरसुम अब ऐबा के सामने उल्टे पांव हटते हुए अपने आप को सिर्फ दिफा तक महदूद कर रहा था और ऐबा की तेज और जानलेवा हमलों के सामने अब उसकी हालत गम के हुजूम, दुखों के अनबोह, वहशतों के मनाजिर और दर्द की आंधी लौ से भी ज्यादा बदतर होना शुरू हो गई। कुछ देर तक ऐबा कुरसुम को उल्टे पांव पीछे हटने पर मजबूर करता रहा। लम्हे ब लम्हे उसकी हमलों में तेजी और शिद्दत आती जा रही थी और इसी के साथ साथ लम्हे ब लम्हा कुरसुम के चेहरे पर खौफ और हिरास की तहीस ज्यादा गहरी होना शुरू हो गई थी। अचानक एक जगह ऐबा रुका। पहले जोरदार अंदाज में उसने तकबीरें बुलंद की, फिर कुरसुम को मुखातब करके कहने लगा, कुरसुम मेरे पास वक्त कम है, संभल, मैं अब अपने काम की तकमील करने लगा हूँ। इसके साथ ही ऐबा फिर जुस्त लगाने के अंदाज में आगे बढ़ा, कुरसुम को चकमा दिया। कुरसुम कुछ ना समझा कि वो किस अंदाज में हमलावर होने लगा है और कुरसुम अभी दिफा करना ही चाहता था कि ऐबा की तलवार बर्फ की तरह बुलंद होकर गिरी और कुरसुम को काटती चली गई। दूसरी तरफ एक और मंजर भी रूनुमा हो चुका था। जिस वक्त ऐबा और कुरसुम एक दूसरे से इंफरादी मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त राजकुमारी कुमार देवी भी ऐबा के मुसलह जवानों के साथ पहुंच गई थी। एक जगह वो रुक गई और अपने मुसलह जवानों को वो मुखातब करके कहने लगी, मेरे भाइयों, सामने देखो, दोनों लश्कर एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार होने के लिए तैयार है और दोनों लश्करों के दरमियान इंफरादी मुकाबला भी शुरू हो चुका है। मुसलमानों की तरफ से ऐबा है, मैं उसे पहचान चुकी हूँ और मेरे बाप के लश्कर की तरफ से जो इंफरादी मुकाबले के लिए निकला है, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन इस वक्त मैं अपने बाप के लश्कर में नहीं जाऊंगी, इसलिए कि लश्कर में मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। जब मेरा बाप लश्करियों को इल्म होगा कि तुम मुसलमान हो तो तुम पर हमलावर होकर तुम्हारा खात्मा कर देंगे और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। मेरी बदबख्ती की मैं अकेली भी अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती, इसलिए कि मैं इतना अर्जा घर से बाहर रही हूँ, लिहाजा हर कोई मुझे मशकूक समझेगा और मैं बेआबरू बेअज़मत हो चुकी हूँ और मैं ये अल्फाज सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस वक्त मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया उस वक्त मैं जीने की बजाय मौत को तरजीह दूंगी। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, इसलिए कि उसी दौरान ऐबा ने कुरसुम को मौत के घाट उतार दिया। इस मौके पर कुमार देवी थोड़ी देर तक बड़े प्यार से अंदाज में ऐबा की तरफ देखती रही, फिर उसके साथ जो मुसले जवान थे उन्हें मुखातब करके कहने लगी, मेरे अजीज भाई, ऐसा करो, मुझे अपने साथ अपने लश्कर की पड़ाव में ले चलो।
जंग जब खत्म हो जाएगी तब मैं अपने बाप, भाई और दूसरे अजीज से मिलना पसंद करूंगी। उन मुसले जवानों ने कुमार देवी की इस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर वो कुमार देवी को अपने लश्कर की पुष्ट पड़ाव में लेकर गए। कुरसिंग का खात्मा करने के बाद ऐबा अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वापस अपने लश्कर में गया। अब नहरवाला के राजा भीमदेव ने हमलावर होने में पहल करने का इरादा कर लिया और ये इरादा उसने लश्कर में शामिल राजपूतों की अंकेख पर किया था। राजपूतों को अपने जंगजू और अपने नाकाबिल तस्खीर होने का वहम और गुमान था, लिहाजा हमले में उन्होंने पहल करने का इरादा किया और वो अपनी तशना परिंदार में खुश कुमानियों का शिकार होते हुए सफ दर सफ और सर बरकफ होकर मुसलमानों के लश्कर पर घर के सरकते मनहूस सानहों शरियानों में उतर जाने वाले कुर्ब खेज रत्तों और सितम की तुगयानी खड़े करती हवादास की लपेटों की तरह टूट पड़े थे। राजपूतों के हमलावर होने के साथ साथ राजा भीमदेव भी अपने लश्कर के साथ असियान के अम्बोह हिजर की खुदी मसाफतों और करवटें लेती बेतकी तरीन की तरह मुसलमानों पर हमलावर हुआ। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबा दूसरे मुसलमान सालारों ने भी दुश्मनों पर तेजदार हमले शुरू कर दिए थे। दोनों लश्कर की इस तरह टकराने से नहरवाला के नवाह में मैदान जंग के अंदर आसाब शोल होना शुरू हो गए थे। राजा भीमदेव के लश्कर और राजपूतों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जोरदार हमले करते हुए मुसलमानों को अपने सामने पसपा और भाग जाने पर मजबूर कर दें, लेकिन उनकी हर कोशिश, उनका हर हरबा नाकाम रहा, इसलिए कि मुसलमान तो उनकी अगली सफों को काटते हुए पिछली सफों का रुख करना शुरू कर दिए थे। और ये सूरत हाल राजा भीमदेव ही नहीं, राजपूतों के लिए भी इंतहा दर्जे की मायूस कुन थी। वो देख रहे थे कि मुसलमान लश्करी तड़पते बर्फ की तरह हमलावर हो रहे थे। अगली सफों से पिछली सफों पर मौत की सुराब, रूह के अजाब, कहरमानों की धुन और वहशतों की लहर की तरह छापना शुरू हो गए थे। राजपूत जो जंग की इब्तिदा में बढ़ चढ़ कर हमलावर हो रहे थे और राजा भीमदेव के लश्कर से भी आगे रहने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पुष्ट की तरफ सिमटना शुरू हो गए। उनकी भी कई सफ़ें खून में लथपथ होकर जमीन बोस हो चुकी थी और ये सूरत हाल उनमें भी मायूसी तारी करने के लिए काफी थी। जोरदार हमले करते हुए राजा भीमदेव की सफ़े काट रहे थे तो राजपूतों के अलावा भीमदेव भी मायूसी का शिकार था। तब उस वक्त पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तकबीर बुलंद की, उसके जवाब में सारे सालारों ने तकबीरें बुलंद की और फिर पूरे लश्कर ने तकबीरें बुलंद करते हुए मैदान जंग को हिलाकर रख दिया। साथ ही पहले की निस्बत और ज्यादा तेजी दिखाते हुए फिपरी मौजूद की तरह दुश्मन पर हमलावर होना शुरू हो गए थे। इन तेज हमलों को राजा भीमदेव के लश्करियों के अलावा राजपूत भी बर्दाश्त ना कर सके और बड़ी तेजी से मुसलमानों के मुकाबले में उनकी हालत कमसम राहों धुआं गुबार में नवाह कना हवाओं की तरह हो गई थी। आखिरकार मुसलमानों के हाथों नहरवाला के राजा भीमदेव को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजपूत जिधर से आए थे उधर ही भाग गए। राजा भीमदेव का बचा कुचा लश्कर जाकर शहर में महसूर हो गया, जबकि खुद राजा भीमदेव उसके बेटे रामदेव दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।